गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें 2 क्लासेस ले लिया है। हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था व्हाट इज़ इनकम एंड अदर गोल्स एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस. So we will just recall what we have discussed in the previous class, and then we will move ahead with the today's topic, that is what is national development and how these developments are important for a nation. So before that we will just recall what we have done in the previous class. We have done income and other goals. So we have, with the help of the examples, we have seen that how income is important, and income, with the help of income we can make our life, we can enjoy whatever for making our life easier. So income which we can purchase with the help of income, it has been seen as a material things which we can purchase with the help of money, with the help of income. Now, apart from income, we have seen that people, apart from high earning profit, they are having other notions also. So, what are the other notions that they are having? That apart from income, material things, non-material things are very important for them. Non-materials, why? Because they also need security. Job security is important. We have seen job security is important. Freedom, where there is working environment should be good, environment should be good. So all these things are also important. So this has been called as non-material things. This cannot be purchased with the help of money. With the help of example of a friend, just we have discussed that if you are having a friend, you enjoy with your friends. Imagine when you are having a pocket full of money, but you don't have your friends. To whom you are going to spend the money? How you are going to enjoy? So without that, without your friends, your happiness cannot be shared with anyone. So you need your friends with you, along with you. So the friend cannot be purchased with the help of money. So that is, friendship has been called as non-materialistic. Same as when we grow up, when we are moving ahead, when we want more income. Apart from income, we also need security, job security, freedom, environments where we are working, it should be good environment. And apart from that, respect, dignity. There should be no discrimination with the persons we are working. So these are the things is very important. So that is what other goals, apart from income, other goals are also important for the persons, for individuals. So that is what we have discussed in the previous class. Now we will move ahead with to this topic. Today's topic is national development. What is national development? Now, national development, when a student, imagine we will start from the zero, that when you are developing with that was when you are progressing. Development means progress. So when you are progressing in your marks, in your exams, when your exams you are getting good marks, means you are progressing, you are developing. Overall development, when you get result good percent and you are promoted to the next class. So this is how each and everyone has been progressing, how the peoples are earning, how the industrialists they are earning and they are developing. So all the development all together will be called as the national development. The development of all, not the development of an individual. So the development of all, we can say it is the development of nations. So development of all individuals, not the single one. Single person, if they are developing, that is, the person is only developing, not the area is developed. So when the area is developed, the society is developed, ultimately the nation will develop, the country will develop, and that will called as national development. This is very important. Now in the above discussions, what we have learned that people have different goals. कि people अपने अलग अलग goals होते हैं, and if they have different goals, they have must
डिफरेंट आइडियाज़ हाउ टू डेवलप देयर गोल्स। सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, तो किस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव करेंगे, उनके आइडियाज़ अलग अलग होगी, उसके लिए कैसे वो काम करेंगे, हाउ दे विल वर्क फॉर दैट टू गेट दैट, टू गेट देयर आइडियाज़, टू गेट देयर नोशंस, टू गेट देयर गोल्स टू बी success. This is very important. Now when you will discuss about all these things with your friends, that what is their goals, you will see that they have different aspirations. सबके अपने अपने होंगे, अलग अलग होंगी, अलग अलग इच्छाएं होंगी, किसी के मिक्स हो जाएंगे, किसी के कन्फ्लिक्ट्स में भी आएंगे। तो इसी तरह से they are different way through which we can achieve. Now same as in the country के अंदर भी वैसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन वॉन्ट्स दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन फुली बाय द गवर्नमेंट। मान लेते हैं कि कोई इंसान है, अब वो क्या चाहता है, द पर्सन क्या चाहता है कि जो प्रोडक्शंस हो रहा है, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, वो टोटली किसके पास होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए, कंट्रोल जो होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। ये किसी पर्सन का एस्पिरेशन है, वो सोच रहा है। लेकिन दूसरा पर्सन, द सेकेंड वन, जो दूसरा है, वो क्या चाहेगा, उसकी अलग गोल होगी। सो यू विल थिंक दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन प्राइवेटली। वो बोलेगा कि गवर्नमेंट के पास नहीं, प्राइवेट के पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग गोल्स होती है, और समटाइम्स इस चीज़ में कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकती है, क्योंकि एक का अगर डेवलप होता तो दूसरे का डेवलपमेंट नहीं होता, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था। So this is how. So in this sense the idea are conflicting, क्योंकि दोनों में conflict हो सकती है। गवर्नमेंट, it will run by government or it will run by private. So would the idea adopt, अगर इसमें जो भी conflicts है, तो conflicts को हम कैसे डील करें, उसे कैसे, ताकि वो conflicts जो है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। हाउ एंड हु डिसाइड व्हाट शुड बी डन, कितना और कैसे क्या होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं करना है, टू डेवलप द नेशंस। ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है इस पर डिसाइड करना। ना वुड द आइडिया अडॉप्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑल, और जो भी आइडिया लिया गया उसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जो हमने आइडिया लिया है उससे क्या बेनिफिट्स जो है, डेवलपमेंट जो है वो सबका हो रहा है, दैट इज़ ऑल। क्या सभी को हो रहा है? अगर सभी को हो रहा है, बेनिफिट सबको हो रहा है, और नॉट अ वन सेक्शन, किसी सिंगल सेक्शन को, सिंगल सोसाइटी को, सिंगल कम्युनिटीज़ को या सिंगल ग्रुप्स को नहीं हो रहा है, देन वी विल से दैट इट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट नेशनल है। अगर किसी सिंगल का हो रहा है, किसी सिंगल कम्युनिटीज़ का हो रहा है, सिंगल इंडिविजुअल्स या सिंगल ग्रुप्स का हो रहा है, so it cannot be called as national development. So it means the development, national development, it will be the development of all. It should be benefited to all people, those who are living in our country, either irrespective of the caste, creed, color, sex, then money, rich, poor, सभी को होना चाहिए, then it will totally develop the nation. दिस इज़ वॉट नेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग मूव करते हैं, तो ये टॉपिक इसी में पूरा जो था इसी में डिस्कस हमने किया है। अब यहाँ पे एक आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक्स में, दिस देयर इज एन अगेन वर्कआउट में इसमें दिया हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है, वी कैन सी द पिक्चर्स ओवर हियर। इस पिक्चर्स में क्या लगेगा, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ सच एन एरिया, कि वो बिल्डिंग्स दिख रही है, मे बी इट मान लेते हैं रेस्टोरेंट हो या होटल्स हो, उसके सामने क्या दिख रहा है, वी आर सीइंग द पुअर पीपल्स दे आर लिविंग ऑन दैट एरिया। तो इसने डेवलपमेंट किया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, इनके बारे में नहीं सोचा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, द रीड द न्यूज़पेपर, यहाँ पे रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर्स है, उसके बेस पे कुछ है। तो लेट्स सी व्हाट इज बीन रिटन है ओवर हियर। अ वेसल्स डंप 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट। तो किसी ने डंप किया है, जो टॉक्सिक वेस्ट होती है इंडस्ट्री से निकलती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, या दैट वाज वी कैन से एंड पॉइजनस जो है, इसे
डंप करना ओपन एयर में बहुत ही डेंजरस हो जाता है, तो इन्होंने डंप किया ओपन एयर में इन अ सिटी, और वो भी सिटी में आसपास सराउंडिंग सी के पास. सो दिस हैपन इन अ सिटी कॉल अबिजन इन आइवरी कोस्ट. ये एक अफ्रीकन कंट्री अफ्रीका में है. सो द फ्यूम्स, तो इससे वो डंप करने से किया हुआ जो उसमें से स्मोक निकला, जो गंदगी निकला, धुआं निकला, ये टोटली हाईली टॉक्सिन होगा. और वो अगर इनहेल करते हैं तो कॉजेज न्यूसेंस, सांस लेने में तकलीफ होगी, स्किन में रैशेस आना शुरू हो गया वहाँ के लोगों को, बेहोश होने लगे, फैंटिंग्स, बेहोश होने लगे, डायरिया जैसे सिम्टम्स आने लगा. आफ्टर अ मंथ जब क्रॉस हुआ तो बहुत सारे लोग, इनमें से 7 फेयर डेथ ड्यू टू ऑल दिस बाय इनहेलिंग दिस फ्यूम्स. उनसे इतने लोग 7 डेथ हो गई. 20 दे एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स एंड 26,000 ट्रीटेड. उनको ट्रीटमेंट भी चलने लगा पॉइजनिंग कि उन्होंने जो है उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन्स क्रिएट हो गई है. तो सोचो किस तरह से इन्होंने, एक ने अपना डेवलपमेंट किया, अपना जितना सारा प्रोडक्शंस करना था, लेकिन उसकी वेस्ट को उन्होंने जहाँ पे डिस्पोज किया, उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा. तो ये डेवलपमेंट किसका था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट मान लेते हैं, जिसने अपना कचरा जो था, जो वेस्ट था, जंक था, उन्होंने कहीं और डिकम्पोज करवाया. तो हु हैज़ डन दिस? अ मल्टीनेशनल कंपनी कहा गया डीलिंग इन पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम एंड मेटल्स में डील करती है. तो उनका जो बाय प्रोडक्ट जो गंदगी निकली, उन्होंने उसको डिकम्पोज कराया. तो ये उन्होंने खुद नहीं किया, इट हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया था, लोकल कंपनी आइवरी कोस्ट, वहाँ पे उनको दिया था डिकम्पोज करने के लिए. इन्होंने डिकम्पोज जो था शिप से लेके वहाँ पे डिकम्पोज करवाया. तो ये क्या है कि सिर्फ अपने बारे में सोचा, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, उनके बारे में इन लोगों ने नहीं सोचा. नाउ हु वे द पीपल हु बेनिफिटेड? द इंडस्ट्रियलिस्ट, द मल्टीपल नेशनल कंपनी एमएनसी, मल्टीनेशनल एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी को बेनिफिट हुआ. हु वाज नॉट द पीपल हु आर लिविंग ऑन दैट आइवरी कोस्ट? उनको कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनको उनकी हेल्थ प्रॉब्लम इशू अराइज हो गई. व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री? उनकी डेवलपमेंट गोल थी, सिर्फ अपने बारे में इन्होंने सोचा था. डेवलपमेंट, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, बट व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ दैट कंट्री, दोज हु आर लिविंग ऑन दैट कोस्टल एरिया? दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट. तो इस तरह से ये चीज़ है. व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज? ये आपके लिए और आपके लोकेलिटीज़ में, अगर आप विलेज में हो, टाउन्स में, या फिर आप लोकेलिटीज़ में रहते हो, तो आपके लिए आपका डेवलपमेंट आप क्या होना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट इफ़ यू डिस्कस, देन just write down with the help of pencils in your book. Now let's move ahead with the new topic. Now the next topic is how we are going to compare different countries or state. अब यहाँ पे हम जिस तरह से अलग अलग गोल्स देख लिया, इनकम्स देख लिया, नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, द डेवलपमेंट शुड बी गेटिंग बेनिफिट और गिविंग बेनिफिट टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, टू एवरी पर्सन, then it will call the national development. If it has been given benefit to a single person, a single individual, not a single communities, a single group, then it cannot be called national development. So right from that we will move to different, how we are going to compare different countries, कि हम एक कंट्री को, कि एक कंट्री कितना डेवलप कर रहा है, दूसरे कंट्री से कितना डेवलप्ड है, how we are going to compare. उसको कंपेयर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल मूव अहेड विद दैट. नाउ अब यहाँ पे वी हैव हर्ड अबाउट, आप लोगों ने सुना होगा डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ये वर्ड्स यूज़ बहुत बार यूज़ किया हुआ है क्लास में भी, कि हु आर द डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड, देन अंडर डेवलपिंग भी आता है, डेवलपिंग भी आता है. तो इस तरह से ये वर्ड्स, तो ये चीज़ें आ जाएगी विद वी आर गोइंग, हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर एंड हाउ वी आर गोइंग टू make a mark as developed country, underdeveloping or developing country. So with the help of this we will have that clear idea. Now when we are comparing different things, they will have similarities as well as differences. अगर आप मान लो फ्रेंड्स के साथ में, अगर हम आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी कंपेयर करते हैं, तो कभी सिमिलैरिटीज़ भी मिल जाती है, कभी डिफरेंसेस भी आ जाता है.
तो यहाँ पे दोनों ही आएगा, सिमिलैरिटीज़ भी आएगी कंट्रीज़ के बीच में एंड डिफरेंसेस भी आएगा। तो ये सभी को हमें लेके कंपेयर करना है। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम, लेकिन हमें कौन सा लेना है, कौन सा हमारे लिए देश के लिए अच्छा रहेगा कंपेयर करने के लिए। हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, अगर हम लोग जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स के लिए करेंगे तो फ्रेंड्स एजुकेशंस ले लेते हैं कि कौन सबसे अच्छा है, एजुकेटेड है, किसकी हाइट ज़्यादा बड़ी है, हेल्थ में कौन है, कौन टैलेंटेड है, कौन इंटरेस्टेड है, इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन है, इस तरह से करते हैं। बट व्हेन वी यूज़, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम लोग कंट्री के लिए जाते हैं तो वी हैव सम अदर कि उस कंट्री का इनकम कितना है, वहाँ पे लोग किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है किस तरह से आएगी वहाँ पे, किस तरह से इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ कैसी है हर कंट्री की। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्राइटेरिया कंपेयर करने का। तो ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम लोग उसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कंपेयर करेंगे ना, उसमें वो आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ये एक क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्री, एनी कंट्री विद द अदर, आइदर कंट्री हो या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं। वो आता है कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा हाई इनकम अर्न करता है, किस तरह से। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे हु आर अर्निंग इन द कंट्री, तब इजी आएगा धीरे धीरे। अब देखो इनकम अर्न करना है ना, इनकम अर्न करना बहुत, क्योंकि इनकम जो है वो हमें बताता कि हम लोग कितना अर्न करते हैं। फिर नेशनल में आएगा, मान लो एक फैमिली है और फैमिली में 4 मेंबर्स है, ठीक है ना, 4 मेंबर्स है। 4 मेंबर्स में 2 मेंबर्स जो है मान लो 90,000, यहाँ पे बोथ 90,000 अर्न करते हैं, 90,000 जो है रुपीज़ दे आर अर्निंग, बाकी 2 मेंबर्स दे आर नॉट अर्निंग। तो उनका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में क्या हो जाएगा, एवरेज के अंदर एवरेज में आएगा वी आर गोइंग टू डिवाइड विथ 4, 90 डिवाइडेड बाय 4। क्यों, क्योंकि मेंबर कितने घर के अंदर 4 है, लेकिन अर्निंग कितने कर रहे 2 है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 4, दैट इज 20,000 समथिंग आ जाएगा, 20.5 इस तरह से। अब यहाँ पर जो 2 बंदे थे इन्होंने 90,000 अर्न किया, बाकी ने नहीं किया, लेकिन उसके कारण इंडिविजुअल पर हेड के अकॉर्डिंग 20,000 प्लस जो आया, तो इससे उन लोगों का जो मेहनत था वो थोड़ा कम दिख रहा है कि इनका अर्निंग कम हो रहा है। ये किसके कारण हुआ, बिकॉज कि 2 मेंबर्स ने काम नहीं किया। वैसे ही कंट्री के अंदर होता है, कंट्री के अंदर भी जो हमारा पॉपुलेशंस है ना, देश की जो पॉपुलेशंस है वो बहुत है, मान लो 100% पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है। अब ये पॉपुलेशंस जो है सभी नहीं काम करते, मान लेते कि 60% पॉपुलेशन हमारा क्या है, वर्किंग पॉपुलेशंस है। अब उसमें से 40% जो है वो वर्किंग नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग। इसमें बच्चे आ जाएंगे जो डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, ओल्ड आ जाएंगे, ओल्ड एज, वो भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं। तो इसमें से वो सारे आ जाते हैं, कुछ लोग जो कुछ काम नहीं करते वो भी आ गए। तो इट मीन्स हमारे यहाँ पे 60% जो पॉपुलेशन आर अर्निंग। तो ये अर्निंग जो है, अब अर्निंग इनका है, लेकिन अगर हम इसको एवरेज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन से 100, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल पॉपुलेशंस दो वॉट एवर द इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशंस। तो यहाँ पे 60% पीपल जितना अर्निंग करेंगे डिवाइडेड बाय उसके कितने लोग हैं उसके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशंस।
तो हमारा इससे जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 100% पीपल्स के साथ हम लोग क्या करें, शेयर करें मनी, अपना इनकम शेयर कर रहे है कि नहीं। तो इसी तरह से, तो इसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, इसी को कहा जाता है पर कैपिटा, नॉट कैपिटल, पर कैपिटा इनकम है ये। तो इसी तरह से हमारे देश में मान लो कि 100% में 60% पॉपुलेशन वर्क करता है और 40% नहीं करता है। तो यहाँ पे जितने लोग कमा रहे ये लोग कमा रहे, तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दिस इज व्हाट, पर कैपिटा इनकम, पीसीआर, पर कैपिटा इनकम। इससे हमारा एवरेज कम हो जाएगा। तो इसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू ये कोई भी कंट्री उसको इंडिकेट कर सकता है कि वो कंट्री जो है डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है डिसाइड कौन करता है कौन कितना डेवलप्ड है, तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, वो ये क्राइटेरिया उन्होंने निकाल के क्लैरिफाई हमेशा जो ये आफ्टर 5 years जो भी होती है। तो यहाँ पे 2017 में उन्होंने निकाला हुआ है कि पर कैपिटा इनकम यूएस, क्योंकि डॉलर में ही किया जाता है, दैट वाज दैट कि ना ज़्यादा हाई है ना लो है, तो हमेशा डॉलर से ही लिया जाता है। तो ये रहा 2017 में यूएस डॉलर कितना है, 12,056 पर एनम। अगर पर पर्सन, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, वो पर एनम अपने साल अपने ऊपर अपने सिंगल पर्सन अपने लिए खर्च करता है ईयरली, तो वो कंट्री को कहा जाएगा कि वो कंट्री रिच है। अगर कोई इससे नीचे करता है, लेस देन, लो इनकम हो गया उसका, तो दैट कंट्री बी कॉल्ड एज लो इनकम कंट्री। इंडिया जो है, इंडिया उसकी जो 2017 में यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 1820 पर एनम आया, तो इसीलिए इंडिया बीन इंक्लूडेड इन लो मिडिल इनकम। इंडिया है लो मिडिल इनकम, मतलब हम लोग पहले अंडर डेवलपिंग में थे, अंडर से हम लोग मूव करके डेवलपिंग में आए हैं, तो वी आर ऑन डेवलपिंग, हम डेवलपिंग में हैं। तो इसी तरह से ये है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आ गया 1820 पर एनम। तो इसी तरह से ये वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया डाटा कलेक्ट करने के बाद डिसाइड करती है कौन सी कंट्री है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो रिच कंट्रीज बहुत सारी है, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज मिडिल ईस्ट, सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज है जहाँ पे डेवलप कंट्रीज बहुत सारे हैं। तो ये एक इंडिकेटर्स था, वो जो था पर कैपिटा इनकम। तो हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस दूसरे क्राइटेरिया के बारे में। तो व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, ये हमने डिस्कस किया, और विद द हेल्प ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम वी कैन कंपेयर वन कंट्री टू द अदर, और वी कैन कंपेयर वन स्टेट टू द अदर। ठीक है, तो ये हमें जो डाटा मिलता है, अगर हम कंट्री को कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड बैंक हमें डाटा देती है, कलेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे फिगर बताया गया है। अगर इतना होता है तो कंट्री को कहा जाएगा रिच, इससे नीचे है तो वो लो इनकम में आ जाता है, इंडिया इनके बीच में है इसीलिए वो मिडिल में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया से शुरुआत करेंगे। टिल देन टेक केयर।